Good morning, friends. Myself, Dr. Nilesh Kumar Jain, professor at SIRTS, Bhopal. We will start our next session on cloud computing, and that is virtualization. In our first or second lesson, we have studied the concept of virtualization. Today, we will go something in depth. What is virtualization? What are its characteristics of virtualized environment? And how these characteristics make virtualization advantages or benefits to the cloud user. So today we will study these three topics: virtualization concept and its characteristics, and how these characteristics make the benefits of virtualization. So virtualization technology is one of the fundamental components of the cloud computing, especially in regard to the infrastructure based services. It allows the creation of a secure, customizable, and isolated execution environment for running application, even if they are untested, without affecting other users' applications. अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो in 1950s onwards, when the mainframe systems came in the market, for this concept, the virtualization was emulated or came in the market. So जब वो मेन फ्रेम पे हमने क्या किया, हमने मल्टीपल मशीन्स were developed or designed or were given to the multiple users. So यहाँ से वो virtualization concept came, and initially it was known as a hardware virtualization because हम उसमें हार्डवेयर वर्चुअलाइज कर रहे थे। और धीरे 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 जब वर्चुअलाइजेशन थोड़ा सा एडवांस हुआ, then hardware and software both came the virtualization. So the basis of this technology is the ability of a computer program or a combination of a software and hardware to emulate the executing environment separate from one that hosts such program. Means अभी हम देखेंगे इसके तीन कॉन्सेप्ट, एक होस्ट है, क्लाइंट है। तो होस्ट ने मीन्स द मेन कंप्यूटर और द मेन फ्रेम, जो प्रोग्राम जिसमें इंस्टॉल्ड है उस पर एक हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो मुझे वर्चुअलाइजेशन में सपोर्ट कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी का जो बेस है दोनों हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ समझाने की बात करी है कि लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। सपोज वी आर रनिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम on the top of virtual machine which itself is running on Linux operating system. मीन्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मशीन है जिसमें Linux ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। हम फिर उसमें क्या करें, एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल लें। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। सपोज मुझे Linux पे काम करना नहीं आता और आवर एम्प्लॉइज और मी आर मोर comfortable on Windows. But since Linux operating system is open source operating system and a very multinational company, and due to security features of the Linux, most of them prefer Linux. But our employee or myself is not comfortable in Linux. Then what did I do? I have installed a Windows operating system in a virtual environment or in a virtual box, and I can use Windows on a Linux machine. Means we can see that
virtualization provides a great opportunity to build elastically scalable systems that can provision additional capability with minimum cost. मीन्स हमें अब 2 सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें एक ही सिस्टम जिसमें लाइनक्स भी डला है और जिसमें विंडोज़ डला है, दोनों पे काम हो रहा है। अब मुझे ऐसा नहीं हुआ कि किसी को लाइनक्स पे काम करना था तो लाइनक्स मँगाया, किसी को विंडोज़ पे काम करना था तो विंडोज़ मँगाया। So we can say that virtualization is widely used to deliver a customizable computing environment on demand. So as per the demand of the user, as per the demand of the companies, virtualization can be customized, or virtualization can provide the customizable environment. So further, let us more understand what is virtualization. So virtualization basically is a large umbrella of technologies and concept that are meant to provide an abstract environment, whether virtual hardware or an operating system, to run an application. The term virtualization is often synonymous with hardware virtualization, which plays a fundamental role in efficiently delivering infrastructure as a service solutions for a cloud computing. So, एक वर्चुअलाइजेशन एक बड़ा नाम है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस कैन बी रन easily and efficiently. और अगर हम ओवरऑल इसको समझें तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड्स द मेन सर्विस, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस for the cloud users, for the cloud users. So, due to this virtualization technology, it has gained a renewed interest due to different features, that is increased performance and computing capacity. मीन्स परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है मेरी और कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी है। सेकंड, अंडर यूटिलाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। थर्ड, लैक ऑफ स्पेस, ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स एंड राइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। मीन्स अगर हम देखें तो जब हम एक सिस्टम लेते हैं या एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं पर्सनली, तो हमें इन सब चीज़ों की समस्याएं जाती हैं। लेकिन अगर हम यही काम क्लाउड पे जाके करते हैं तो वी आर नॉट हैविंग दीज प्रॉब्लम्स दैट वी occur oftenly. So what are the characteristics of virtualized environment? अभी तक हमने देखा कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या था और कैसे एक हमें मजबूर कर रहा है या हमें प्रमोट कर रहा है टू मूव टूवर्ड्स क्लाउड एनवायरनमेंट्स और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जब हमें क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड एनवायरनमेंट्स की तरफ जा रहे हैं तब वर्चुअलाइजेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। The environment plays the important role. So let us understand what are the different characteristics of the virtualized environment. Basically, virtualization is a broad concept that refers to the creation of virtual version of something, whether hardware or a software or a storage environment or a network environment. मीन्स अगर आप देखें तो हार्डवेयर भी वर्चुअल हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी वर्चुअल हो रहा है, हार्डवेयर सॉरी स्टोरेज भी हमें वर्चुअल मिल रहा है। फिर इसके अलावा नेटवर्किंग रिसोर्सेज भी हम वर्चुअलाइज्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स दैट आर गेस्ट मीन्स द क्लाउड यूजर, होस्ट मीन्स द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, and third is a virtualization layer. Virtualization layer means
इन दोनों के बीच में एक जो लेयर का काम कर रहा है, एक मीडियम का काम कर रहा है, एक मध्यस्थ का काम कर रहा है, दैट इज द वर्चुअलाइजेशन लेयर. So the guest represent the system component that interacts with the virtualization layer rather than the host. Means guest क्या कर रहा है, वो virtualization layer से interact करता है, not directly to the host. Whereas host represent the original environment where the guest is supposed to be managed. होस्ट क्या है, ओरिजिनल एनवायरनमेंट वही है जहां पे गेस्ट को काम करना है, पर गेस्ट कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द होस्ट. इन दोनों के बीच में कौन है, द वर्चुअलाइजेशन लेयर. तो द वर्चुअलाइजेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रिएटिंग द सेम और डिफरेंट एनवायरनमेंट वेयर द गेस्ट विल ऑपरेट. तो जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है वो गेस्ट को कैसे काम करना है, क्या काम करना है, क्या सुविधा होस्ट को देनी है, उसके बीच में एक मैनेजर का काम कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल मीडियम का काम कर रहा है, जो इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा. लेट अस सी इन द फिगर. हियर यू कैन सी इन द फिगर दैट देयर इज अ गेस्ट, देयर इज अ वर्चुअलाइजेशन लेयर एंड थर्ड इज द होस्ट. गेस्ट काम कर सकता है वर्चुअल इमेज बनाना, एप्लीकेशंस पे काम करना. वर्चुअल लेयर क्या है, एक वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. मीन्स इट्स अ सॉफ्टवेयर इम्यूलेशन टाइप का काम यहाँ पे हो रहा है. और जो होस्ट है जहाँ पे बेसिकली फिजिकल सब कुछ है, फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकल नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं. मीन्स सब कुछ फिजिकल यहाँ है, बाकी सब ऊपर एक कहो तो माया जाल है, बाकी क्या है. मीन्स सब कुछ वर्चुअलाइज्ड है, मतलब यू जस्ट कैन इमेजिन कि समथिंग इज गोइंग ऑन जबकि कुछ है ही नहीं वहां पे. एवरीथिंग इज वर्चुअल. और इसी तरीके से अगर एआई और क्लाउड सर्विसेज इंक्रीज हुई तो अनइमेजिनेबल थिंग विल हैपन कि हमें हर चीज वर्चुअली समझ में आएगी, कुछ फिजिकल दिखेगा ही नहीं. सो जब हमने इस एनवायरनमेंट को समझा कि देयर इज अ गेस्ट, देयर इज अ होस्ट एंड देयर इज अ वर्चुअलाइजेशन लेयर. सो these environments support different applications and then implementation of virtual technology came. अब हम बात करें तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो आई वो कहाँ से आई. वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो थी इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय आईबीएम. और आईबीएम ने जब मेन फ्रेम लाई तो ही हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एंड हाइपरवाइजर्स. मीन्स उसने इस कॉन्सेप्ट को लाया जब मेन फ्रेम लाया वो. और इसमें उसने जो सुविधा दी थी वो सुविधा ये थी कि यूजर कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम प्रोवाइडेड दैट बैकवर्ड कंपेटेबल एनवायरनमेंट अलाउस डिफरेंट कस्टमर्स टू रन प्रीवियस वर्जन ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो. मीन्स एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने की सुविधा उसने दी और पुराने वर्जन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की भी सुविधा उसको मिल गई. यहाँ पे ये आईबीएम ने शुरू किया अराउंड 1950-60s के आसपास. द मोस्ट इंट्यूटिव एंड द पॉपुलर इज अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन विच इज ऑल्सो द कंस्टिट्यूट द ओरिजिनल रियलाइजेशन ऑफ द वर्चुअल कॉन्सेप्ट. तो जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत हुई थी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से. तो धीरे धीरे जब हार्डवेयर वर्चुअलाइज्ड हुआ then there came the software, then they came the networking, then they came the storage. मतलब वो धीरे 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 उसका डेवलपमेंट होता गया और वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन बदलती चली जा रही. सो व्हाट इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. हियर इन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन guest is represented by a system image which is comprised of an operating system and the installed application. फिगर आपने देखा होगा, पहली ऊपर आपने देखा था कि गेस्ट जो बैठा है तो गेस्ट क्या काम कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस पे काम करना.
तो जो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको काम करना है, तो वो कहाँ हैं? दे आर बेसिकली इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर दैट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द वर्चुअलाइजेशन लेयर नोन एज वर्चुअल मशीन मैनेजर। अभी हमने कहा था ना कि मैनेजर का काम कर रहा है वो। तो एक वर्चुअल मशीन मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है all operating system and applications hosted or installed on him. So the host is instead represented by the physical hardware and in some cases the operating system that defines the environment where virtual machine manager is running. तो मतलब ये जो होस्ट के ऊपर इंस्टॉल्ड है सब कुछ, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, और उस हार्डवेयर को हमने क्या किया, इट हैज़ बीन डिवाइडेड। उसमें हमने एक एनवायरनमेंट दे दिया कि जिसमें मल्टीपल हार्डवेयर कैन बी रन। सो अभी हमने बात करी यहाँ पे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की। अब मैं कहूँ कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कैसे होगा। सो इन द केस ऑफ वर्चुअल स्टोरेज द गेस्ट माइट बी क्लाइंट एप्लीकेशन। गेस्ट है, इट माइट बी अ क्लाइंट एप्लीकेशन और द यूजर दैट इंटरेक्ट द वर्चुअल स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड ऑन द टॉप ऑफ अ रियल स्टोरेज सिस्टम। मीन्स जहाँ पे फिजिकल स्टोरेज सिस्टम हमारा है उसके ऊपर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी एक एप्लीकेशन लगी हो, एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या स्टोरेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन, या आप कुछ भी बोले, बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज मैनेजिंग द स्टोरेज। तो वर्चुअल स्टोरेज मीन्स वर्चुअल क्लाइंट मीन्स द क्लाउड, क्लाउड यूजर ने जब कुछ स्टोर कर रहा है तो स्टोरेज को कैसे मैनेज करना ऑन फिजिकल स्टोरेज सिस्टम और रियल स्टोरेज सिस्टम। तो एक जो उसको मैनेज करने के लिए देयर इज अगेन अ सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज वर्चुअल स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मीन्स हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए वर्चुअल मैनेजर था। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी स्टोरेज को मैनेज करना है, देन देयर इज अगेन अ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और इन द सेम वे जब नेटवर्क की बात हम करें कि नेटवर्क को कैसे वर्चुअल किया जाएगा, सो हियर द कैस्ट एप्लीकेशन एंड यूजर इंटरेक्ट विद द वर्चुअल नेटवर्क एंड सच एज virtual private network, that is VPN, which is managed by some specific software, that is a VPN client using the physical network available on the node. मीन्स अगर अपन देखें ओवरऑल, जब हम यहाँ हार्डवेयर की बात कर रहे थे तो एक यहाँ पे एक लेयर है दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जब हम वर्चुअल स्टोरेज की बात कर रहे थे अगेन देयर इज अ सॉफ्टवेयर। और जब हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो अगेन देयर इज अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट इज अ वीपीएन क्लाइंट, जो क्या कर रहा है, इन सब रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है एज अ मैनेजर। बेसिकली VPN are useful for creating illusion of being within a different physical network and thus accessing the resources in it which would otherwise not be available. अगर हम बात करें तो सब कुछ इल्यूजन ही है। अभी तो हमने केवल यहाँ VPN की बात की कि VPN एक इल्यूजन डेवलप कर देता है कि देयर इज समथिंग। अगर हम देखें तो सब इल्यूजन ही है कि एक फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन के ऊपर हमने एक वर्चुअल मशीन बना दी है, दैट इज अगेन देयर इज समथिंग, दैट इल्यूजन ही कह सकते हो आप उसको चाहो तो। नाउ व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ द इल्यूजन, सॉरी वर्चुअलाइजेशन। मीन्स अगर हम देखें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि हम वर्चुअल स्टोरेज बन गया, मेरा वर्चुअल हार्डवेयर बन गया, मेरा वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, वर्चुअल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गए, वर्चुअल स्टोरेज हमने बना लिए। बेसिकली जब ये कंक्लूड करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि देयर इनसे कुछ एडवांटेजेस बन जाते हैं। सो हियर वी सी दैट वी कैन कंक्लूड दैट मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दिस इम्प्लीमेंटेशन for virtual environment is created by the means of software program.
अभी हम बात कर रहे थे कि कहीं न कहीं एक प्रोग्राम ही है जो मुझे सब कुछ दे रहा है। So, the ability of the software and today technologies has allowed profitable use of virtualization and creates a lot of opportunities, and such advantage have always been the characteristics of virtualized solution. ये जो एडवांटेजेस है ना, वो भी एक प्रकार से वर्चुअलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो पहली बात, अगेन द इंक्रीज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात क्यों? क्योंकि हम होस्ट मशीन से तो इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। वी आर किससे बात कर रहे हो आप? वर्चुअल मैनेजर से बात कर रहे हो, एक वर्चुअल से कर रहे हो। मीन्स द एबिलिटी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द गेस्ट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मैनर opens new possibilities for delivering a secure, controlled execution environment. The virtual machine represents an emulated environment in which the guest is executed. All the operations of the guest are generally performed against the virtual machine, which then translates and applies to the host. This level of indirection allows the virtual machine manager to control and filter the activity of the guest, thus preventing some harmful operation from being performed. मीन्स अगर गेस्ट को कोई भी काम कर रहा है तो देयर इज अ वर्चुअल मशीन मैनेजर। तो वो क्या करता है? वो डायरेक्ट होस्ट से इंटरेक्ट करने को तो दे नहीं रहा आपको। तो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहो या कुछ हार्मफुल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहो, तो वर्चुअल मशीन इज एफिशिएंट, virtual machine manager is efficient to filter and control all these types of activities. मीन्स आपकी सिक्योरिटी यहां बढ़ गई क्योंकि वो फिल्टर होके ही होस्ट मशीन पे जाने वाला है। जब फिल्टर होके होस्ट मशीन पे जाने वाला है तो यू कैन नॉट परफॉर्म सम हार्मफुल ऑपरेशंस ऑन इट। अगर हम सेकेंड एक्टिविटी और सेकेंड एडवांटेज की बात करें, then we can say that there is a managed execution. Managed execution से तात्पर्य हर चीज मैनेज्ड है। कब कौन सा काम होना है, कैसे होना है, all is systematically performed here. So we can see that virtualization of the execution environment not only allows increased security, but a wider range of features also can be implemented. मतलब सिक्योरिटी के अलावा हमें बहुत सारी और फीचर्स मिल सकते हैं और मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज द शेयरिंग, सेकेंड इज द एग्रीगेशन, थर्ड इज द इम्यूलेशन एंड लास्ट इज द आइसोलेशन। यू कैन सी द फिगर हियर कि कैसे हम शेयरिंग कर पा रहे हैं, कैसे हम एग्रीगेट कर पा रहे हैं। शेयरिंग का अपोजिट एग्रीगेशन हो गया यहाँ पे। फिर हम इम्यूलेट भी कर रहे हैं कुछ चीज़ें, और देयर इज सम आइसोलेशन ऑल्सो। So let us understand the concept of sharing. Sharing का तात्पर्य यहाँ पे है, it allows the creation of separate computing environment within the same host. In this way, it is possible to fully exploit the capabilities of powerful guests, which would otherwise be underutilized. Means हम different और separate मशीन्स बना लेते हैं, सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन बना लेते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम पूरी की पूरी मशीन की कैपेबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं और मैक्सिमम हम उसको यूज कर लेते हैं। और शेयरिंग ऑफ द मशीन, शेयरिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, शेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज परफॉर्म्ड। नाउ तो सबसे बड़ा फायदा हो गया कि हम अपनी मशीन को ऑप्टिमाइज या मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हमेशा यूज कर पा रहे हैं। सेकेंड इज द एग्रीगेशन। नॉट ओनली इज इट पॉसिबल टू शेयर फिजिकल रिसोर्स अमॉन्ग सेवरल गेस्ट,
मतलब हम केवल शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि एक मशीन से 25 मशीन बना के हमने शेयर कर लिया, लेकिन हमें ज़रूरत पड़े ना तो उन 25 मशीन से एक भी करने को तैयार है, मीन्स इसका अपोजिट भी करने को तैयार है। मीन्स वर्चुअलाइजेशन ऑल्सो अलाउड्स एग्रीगेशन। तो ग्रुप ऑफ सेपरेट होस्ट can be tied together and represented to the guest as a single virtual host। मतलब हम बहुत सारे होस्टों को इकट्ठा करके भी एक होस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात हमने कही, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लस्टर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर which harnesses the physical resources of a homogeneous group of machine and represent them as a single resources। तो क्लस्टर भी हमने पहले डिस्कस किया है। क्लस्टर का तात्पर्य क्या होता है? आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि क्लस्टर इंडस्ट्रीज, फूड क्लस्टर, आईटी क्लस्टर और टेक्सटाइल क्लस्टर। मतलब उन्होंने कहा कि हम एक किसी पर्टिकुलर जगह पे फूड क्लस्टर चालू करेंगे, मतलब हम वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल देंगे। आईटी से रिलेटेड बहुत सारे ऑफिसेस, आईटी से रिलेटेड बहुत सारा काम हम एक पर्टिकुलर जगह पे करेंगे। व्हेन वी से इट्स अ क्लस्टर, मतलब एक जगह एक ही टाइप के बहुत सारे काम होना। तो यहाँ पे क्लस्टर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मीन्स जब हमारे पास होमोजेनियस टाइप ऑफ मशीन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, और जब हम उनको यूजिंग सम सॉफ्टवेयर हम उनको एक मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन वी से इट्स एन एग्रीगेशन। तो दो इसके मेन इंपॉर्टेंट, एक तो शेयरिंग कर पा रहे थे, शेयरिंग का अपोजिट हम एग्रीगेशन भी कर पा रहे हैं। थर्ड हम बात कर पा रहे हैं इमुलेशन। इमुलेशन मतलब टू रिप्रोड्यूस समथिंग, या टू रिप्रोड्यूस द फंक्शन, या टू रिप्रोड्यूस सम इवेंट, और टू रिप्रोड्यूस सम एंटिटी। तो जब वर्चुअलाइजेशन की बात हम कर रहे थे, सपोज हम बात करें कि हमारे पास एक कोई पुरानी फाइल है जो विंडोज़ 95 पे बनी थी या विंडोज़ 98 में बनी होगी, एमएस ऑफिस 2007 में बनी होगी, डॉस का कुछ काम पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? उसको रन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और आज की बात करें तो विंडोज़ 8 एंड above are not supporting the old files sometimes। लोटस 123 की कोई फाइल आपकी बनी हुई है। लोटस आपको शायद नाम भी ना सुना होगा आज की डेट में, लेकिन जब हम लोग ने 96 में जब कंप्यूटर्स को पढ़ना शुरू किया था, तब डॉस कमांड को हम लोग फोकस करते थे। वर्ड स्टार एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता था। लोटस एक्सेल का एक फॉर्म था। डीबेस और फॉक्स प्रो जो आज हम ओरेकल और एसक्यूएल पढ़ रहे हो, उसका एक छोटा सा फॉर्मेट था। मतलब आप देखो, हम लोग ने जो पुराने 96 के आसपास की बात हम जब कर रहे हैं, तो वर्ड स्टार, लोटस, डीबेस, फॉक्स प्रो, फोर्ट्रान और सी लैंग्वेज मतलब बहुत ही पॉपुलर थी। और जब हम विंडोज़ पे काम करते थे तो विंडोज़ 3.1, 95 भी नहीं था, विंडोज़ 3.1 हम लोग डॉस एनवायरनमेंट में विन लिख के विंडोज़ को चालू करते थे। मीन्स एट दैट टाइम डॉस वाज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ वाज एन एनवायरनमेंट। अब तो उल्टा हो गया, विंडोज़ इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉस बिकेम एन एनवायरनमेंट। इस डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। तो जो हमारी पुराने कोई सॉफ्टवेयर बने हुए रखे हैं, पुराने लीगेसी सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं, उनको मुझे अगर रन करना है, मुझे उनको अगर एग्जीक्यूट करना है, मुझे उनको यूटिलाइज करना है, देन दिस वर्चुअलाइजेशन टेक्निक supports us to perform these types of operation। So here I have written the same thing, that this hardware virtualization are able to provide virtual hardware and emulate a particular kind of device such as AC devices for file input output without hosting machine having such hardware installed। मतलब हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं है तो भी हमें सपोर्ट मिल जाएगा टू रीड सम इनपुट आउटपुट फाइल्स यूजिंग एसकेसी डिवाइसेस।
कोई पुराने सॉफ्टवेयर हैं जो इन हार्डवेयर पे रन नहीं हो रहे हैं, तो हम उनको विदाउट चेंजिंग एनी कोड इट इज पॉसिबल टू रन ऑन दीज वर्चुअल मशीन्स। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया है, एक पुराना गेम था आर्केड, बहुत पॉपुलर गेम था उस अपने ज़माने का आर्केड गेम। यू आर नाउ एबल टू रन दैट और प्ले दैट आर्केड गेम यूजिंग दिस वर्चुअलाइज्ड सॉल्यूशन। तो अगर देखें तो शेयरिंग एक फीचर मिला, शेयरिंग का अपोजिट मुझे एग्रीगेशन एक फीचर मिला। एक मशीन से हम 10 मशीन कर रहे थे, वो 10 मशीन से हमने एक मशीन कर लिया। जो पुराने लीगेसी सॉफ्टवेयर हैं, लीगेसी मशीन्स हैं, लीगेसी फाइल्स हैं जिनको हम नहीं खोल पा रहे हैं, चला पा रहे हैं, उनको भी हमें इस वर्चुअलाइजेशन टेक्निक ने यूज़ करने में मदद कर दी। नेक्स्ट दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स वी आर आइसोलेटिंग ऑल दिस, एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। तो virtualization allows providing guests, whether they are operating system or application or entity, with in a complete separate environment in which they are executed। मतलब एक ऐसा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट आपको दे देता है जहां पे आप अपना काम कर रहे होते हो। द गेस्ट प्रोग्राम्स परफॉर्म इट्स एक्टिविटी by interacting with an abstraction layer which provides access to the underlying resources। तो आइसोलेशन ब्रिंग्स सेवरल बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, इट अलाउस मल्टीपल गेस्ट टू रन ऑन अ सेम होस्ट विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। मीन्स 5 यूजर एक साथ काम कर रहे हैं तो पांचों यूजर को, हर यूजर अपने आप में आइसोलेटेड है, वो दूसरे में कहीं इंटरफियर नहीं कर पा रहा है। दैट इज द यूज ऑफ आइसोलेशन, दैट इज द यूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। कि हम बहुत सारे लोगों को मशीन तो दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, पर हमने कहीं ना कहीं उनको आइसोलेट कर दिया है कि वो एक दूसरे को इंटरफियर ना करें, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। सेकंड अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स सेपरेशन बिटवीन द होस्ट एंड द गेस्ट। एक जो वर्चुअल मशीन मैनेजर बना हुआ है ना, वो भी क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है हमें। ना होस्ट डायरेक्ट गेस्ट से इंटरफियर कर पा रहा है, इंटरचेंज कर पा रहा है, ना गेस्ट होस्ट से कर पा रहा है। द वर्चुअल मैनेजर इज लेयर बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट। सो क्या हो रहा है, वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है, इट हैज द एबिलिटी, इट हैज द एफिशिएंसी टू फिल्टर एंड प्रिवेंट द ऑल हार्मफुल ऑपरेशंस अगेंस्ट द होस्ट। तो जो सिक्योरिटी में हम बात कर रहे थे, तो ये आइसोलेशन का ही कारण है कि हम इन चीजों को रोक पा रहे हैं। तो हम जो 3 प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी अभी तो जो बीच में हम आ गए, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी से मतलब है कि इट्स अप्लाइज इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अलग अलग वर्चुअलाइजेशन के हिसाब से वो पोर्टेबिलिटी की बात हम यहाँ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन किया है, तो गेस्ट इज पैकेज विद वर्चुअल इमेज, एक हमने वर्चुअल इमेज उसको दे दी है। In most cases, it can be safely moved and executed on top of different virtual machine। Means on the virtual machine के टॉप पे वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स उसको चाहिए, अगर जो मशीन चाहिए, जितनी रैम चाहिए, तो अपने हिसाब से उसको यूज करेगा। अगर हम प्रोग्रामिंग लेवल वर्चुअलाइजेशन की बात करें, as implemented in Java virtual machine or a .NET runtime, the binary code representing application of components can be run without any recompilation or any implementation of corresponding virtual machine। Means हम .NET environment को या JVM पे और बाइनरी कोड रिप्रेजेंटिंग एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को इजीली रन कर सकते हैं विदाउट कंपाइलिंग अगेन। So portability allows
having own system always with you and ready to use as long as the required virtual machine manager is available. तो पोर्टेबिलिटी क्या कर रहा है, हमें जब तक उसी मशीन को यूज करने में मदद कर रहा है जब तक वर्चुअल मशीन मैनेजर अवेलेबल है, या हम ये कहें जब तक हम पे कर रहे हैं और हमने एक मशीन अपने हिसाब से यूटिलाइज करने के लिए डिजाइन कर ली है, या सेल्फ सर्विस हमने उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्चुअलाइजेशन. What are those virtualizations, characteristics of the virtualization, and how these characteristics of virtualization act as an advantages of the virtualization. So thank you very much. I request you, if you like my lecture, then please subscribe my channel. Here you can see the subscribe button below, and please subscribe it. And follow me on a YouTube or Facebook by Dr. Nilesh Jain. You can search me by Dr. Nilesh Jain. So follow me for updates, and regularly I will teaching more subjects as I will complete this cloud computing and software engineering. Very soon I will be bringing a new subject to you all. So please follow me. Please subscribe my channel. I will be there with you. Or I will also share some motivational lecture that I think you will enjoy. Thank you very much. Have a nice day.